done with motions, so we will do a rapid revision on motions. ठीक है, बहुत ज्यादा हम एकदम हर चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, but we will go quickly through the slides and understand motion. ठीक है, okay. So in case you have any questions, feel free to ask. So what is motion? Motion is basically movement. Movement with respect to a fixed frame of reference. जैसे if this sports person is moving, she is moving with respect to this fixed frame. ये एक fixed frame है भाई साहब, ठीक है, ये ground एक fixed frame है, ये आपका goal post एक fixed frame है, ठीक है. According to all these, she is moving because her distance is changing with respect to time with comparison to a fixed frame of reference. Same here. This car is moving. Why would we say that this car is moving? This is a fixed road. These are fixed poles. Okay? With respect to all these fixed things around it, okay, this car is moving. So motion is always relative. Okay? Motion हमेशा क्या होगा? Relative होगा. Okay? Okay. So basics of motion. तो आपका होता है भाई साहब reference point, state of motion, motion and rest, types of motion, physical quantities and its types, distance and displacement. थोड़ा सा हम fast जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, because we have already covered this chapter. It's in a revision mode that we are doing this chapter. ठीक है, speed क्या होता है, velocity क्या होता है, acceleration and finally retardation, equations of motion, derivation of first equation of motion, derivation of second equation of motion, derivation of third equation of motion, graphs, distance time graphs, displacement time graphs, velocity time graphs, and finally we have acceleration time graphs. हाँ सर खुजाओ तुम बैठकर, ठीक है. Derivation of equations of motion by graphical method, displacement in the nth second जो आपने नहीं सीखा है, and I will show you how to calculate motion in 2 dimensions. तो यहाँ पे आप थोड़ा सा फाउंडेशन का लेवल का कोर्स करेंगे, ठीक है. आपका जो आईआईटी और नीट का फाउंडेशन है वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे. अभी तक हमने जो किया है वो प्योरली 9th स्टैंडर्ड के बोर्ड के पर्सपेक्टिव से था. नाउ वी आर गोइंग टू कवर सर्टेन अमाउंट ऑफ फाउंडेशन मटेरियल एज वेल, ठीक है. ओके, तो अ रेफरेंस पॉइंट भाई साहब होता क्या है, इज अ फिक्स्ड पॉइंट कंसिडर्ड इन द लाइन, सरफेस और स्पेस so that motion can be described easily by locating position of the object. जैसे अगर आप किसी गाड़ी में किसी रोड पे जा रहे हैं तो रोड आपका रेफरेंस पॉइंट हो सकता है. रोड के आजू बाजू जो ये सब फिक्स्ड हैं ये आपके रेफरेंस पॉइंट्स हो सकते हैं. ये जो माउंटेन्स हैं ये आपके रेफरेंस पॉइंट्स हो सकते हैं, बिकॉज दीज आर बेसिकली फिक्स्ड एंड द मोशन with respect to time is happening as compared to these fixed frames of reference. ठीक है, तो ये आपके fixed frames of references हो गए. ठीक है, what is reference points in the context of motion? The point where an object starts moving, a point that remains stationary and is used to describe the motion of other objects, the point where two objects collide, a point that indicates the final position of an object. Yes sir, B वाला होगा. Okay, yes, is B correct? Yes. ठीक है, a point that remains stationary, कोई भी point, जैसे मैं चल फिर रहा हूं, राइट, आप कैसे बोल रहे हैं, मैं चल फिर रहा हूं, am I moving? Why? Because you are fixed. आप फिक्स्ड है, ठीक है, ये दीवार फिक्स्ड है, ये फ्लोर फिक्स्ड है, ठीक है, इन सब के कंपैरिजन में मेरा मोशन हो रहा है. All these are stationary and hence all these are fixed frames of reference and hence I am moving. इनके रेस्पेक्ट में मेरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है. आर वी क्लियर? सो मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव. जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई साहब एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है, दोनों एक बस में बैठे हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए बस जो है तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है विद कांस्टेंट स्पीड, कोई भी स्पीड से जा रही है, लेट्स से 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दोनों भी बस मूव कर रही है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. ठीक है, अभी बताओ यहाँ पे बी के आजू बाजू पेड़ पौधे रास्ता खेत खलिहान जो भी है वो मूव कर रहे हैं. ठीक है, एक घंटे बाद क्या ये दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे? तो क्या एक दूसरे के कंपैरिजन में इन्होंने मूव किया? नहीं किया भाई साहब. ठीक है, एक दूसरे के कंपैरिजन में ये मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनके आजू बाजू सारी चीजें मूव हो रही हैं. जैसे आप ट्रेन में हैं, ट्रेन में जितने भी आपके को पैसेंजर्स हैं दे आर नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू यू, दे आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ऑल थिंग्स आउटसाइड. क्योंकि एक घंटे बाद भी अगर कोई उतरा नहीं होगा तो वहीं पे रहेगा, आपके साथ ही रहेगा. तो दे आर नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू यू. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. सो इन द स्टडी ऑफ मोशन, व्हाई इज अ रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट? इट डिटरमिन्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द मोशन, it provides a stationary location to observe and describe the motion of other objects, it defines the acceleration of an object. See,
इज इट करेक्ट पीपल? हम इट प्रोवाइड्स अ स्टेशनरी लोकेशन, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट है, स्टेशनरी लोकेशन है टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? Okay, okay, okay. Explain the significance of a reference point in the study of motion. So reference point is what? A fixed point. Okay? And on the basis of this fixed point, you will describe the motion of an object. The distance is covered in certain units of time. Okay? Provide examples to illustrate how reference point is used to describe the motion of objects. For example, a tree is a reference point for a moving car. Okay? Or the field is a reference point for a cricketer or a footballer. Okay? Discuss the role of a reference point in determining the position, distance and direction of an object's motion. Define what a reference point is and why is it crucial to the study of motion. So reference point is basically a point which is fixed, and with comparison to the point we are comparing the motions of bodies of other bodies. Okay? And it's very crucial because all our metrics of motion, just as distance, displacement, speed, velocity, are always comparable to a fixed frame of reference only. Okay? क्लियर है? तो स्टेट ऑफ बॉडी क्या होता है भाई साहब? या तो बॉडी मोशन पे होगा, या तो भाई साहब बॉडी क्या हो जाएगा? रेस्ट पे होगा. और बॉडी का मोशन पे होना और रेस्ट पे होना दोनों भी आपके किससे कंपेरेबल है? रेफरेंस पॉइंट से. ठीक है? रेफरेंस पॉइंट से. अगर रेफरेंस पॉइंट आपका रेस्ट पे और बॉडी का डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट से विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, सो द बॉडी इज एट रेस्ट. बट इफ द बॉडी इज मूविंग, देन द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द reference point will continuously change with time. Making sense बच्चा बॉडी? Okay, okay. चलिए इसको करते हैं. When an object is in a state of rest or uniform motion, according to Newton's first law of motion, it implies that no forces. अच्छा ये आपने पढ़ा नहीं है, बट मैं बता देता हूं. न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन क्या है? चलिए इसको स्किप कर देते हैं. वो इनर्शिया का लॉ है, which you are going to study in the next chapter, forces and laws of motion. ठीक है? Okay, we are going to. If a car is moving at a constant speed along a straight road, what can be inferred by the forces acting on it? इसको भी छोड़ दीजिए. Inertia is something that you are going to study in the next chapter, so we will keep it in the parking lot. ठीक है? Types of motion में क्या क्या आ जाएंगे बच्चा बॉडी? एक हो गया आपका rectilinear motion, the other one is circular, and the third one is oscillatory motion. When a particle is moving along a straight line, तो आपका देखो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, या ऐसे जा रहा है, या ऐसे जा रहा है, या ऐसे जा रहा है. All these are basically what? Straight lines. ठीक है? So when a particle is moving along a straight line, its motion is known as rectilinear motion. It can be uniform or non-uniform. Example, motion of a car on a straight road. एक कार एक straight road पे move कर रहा है, that is basically rectilinear motion. आपने छोटे में पढ़ा था, देखो rectilinear propagation of light, याद है? वो एक एक्सपेरिमेंट था. एक मोमबत्ती जल रही है भाई साहब, और इसको आप यहां से देख रहे हैं. आपने भाई साहब यहाँ पे पीस बोर्ड लगा दिए हैं. ठीक है? ये पीस बोर्ड जो आपने लगा दिए हैं, ये क्या है भाई साहब? आपके एक लाइन में है, so you are able to see it. This is called rectilinear propagation of light, which means that light travels in straight lines. So since light travels in straight lines, you are able to see this. कुछ क्वेश्चन है? नहीं? Okay. So motion भी वैसे अगर किसी बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, so we will call it a rectilinear motion. ठीक है? Circular motion. So when a body is basically moving in a circular path, ठीक है, is moving in a circle around a fixed point, एक फिक्स पॉइंट के आजू बाजू ऐसे सर्कल में घूम रहा है, इट इज नोन एज सर्कुलर मोशन. इट कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है? फॉर एग्जांपल व्हेन अ स्टोन इज टाइड टू अ रोप, आपने भाई साहब एक रोप लिया, एक स्टोन को टाई किया, ये घुमा रहे हैं भाई साहब. ठीक है? सो दिस स्टोन इज बेसिकली परफॉर्मिंग व्हाट? अ सर्कुलर मोशन. ठीक है? एंड बीइंग रोटेटेड इन अ सर्कल, अ सीलिंग फैन ब्लेड, एक सीलिंग फैन है भाई साहब, घूम रहा है, तो उसका मोशन भी क्या है? सर्कुलर मोशन है. ठीक है? ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या होता है? जैसे समझो ये एक बॉडी है, यहाँ पे एक स्टोन है, ये हमने लिया, इसको ट्वे 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 ट्वे, ये घूम रहा है. ठीक है? तो ये जो हो रहा है ट्रंग ट्रंग, ये एक फिक्स पॉइंट के आजू बाजू घूमना, इसको अपन बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. आपने अगर कोई स्प्रिंग लिया, उसको खींच के छोड़ दिया तो ट्रंग ऐसे करेगा, है ना? कोई गिटार है, गिटार का स्ट्रिंग आपने अगर देखा रहेगा, उसको आपने ऐसे खींच के छोड़ दिया, ट्रंग ऐसे करेगा, है ना? सो ये जो मीन पोजीशन पे ऐसे वाइब्रेशन होता है, इसको अपन बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है? सो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ repeatedly about a fixed point in a given interval of time, its motion is known as oscillatory motion. For example, the motion of the pendulum of a wall clock is an. आपने पेंडुलम क्लॉक देखा है क्या? नहीं. पेंडुलम क्लॉक ऐसा होता है, देखो ये ऐसे जाता है, ट्रंग ट्रंग ऐसे. पेंडुलम क्लॉक, पहले के जमाने में क्लॉक जो है
वो पेंडुलम्स के साथ अलाइन थे। तो जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता था वही क्लॉक का भी टाइम होता था, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन। ओके, which of the following best describes circular motion? Motion along a straight line, motion in a zigzag pattern, ऐसे zip 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 ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। Motion along a curved path like a circle, motion involving speed changes but not direction. अब कोशिश कीजिए। सी, मोशन अलोंग अ कर्व पाथ लाइक अ सर्कल। तो एक कर्व पाथ में अगर आप मूव कर रहे हैं, सो दिस इज बेसिकली अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। ओके, इन विच टाइप ऑफ मोशन डज एन ऑब्जेक्ट रिपीटेडली मूव बैक एंड फोर्थ अराउंड अ सेंट्रल पोजिशन? लीनियर, ऑसिलेटरी, सर्कुलर और रैंडम? ऑसिलेटरी, गुड, ठीक है। तो जैसे आपका एक पेंडुलम है, एक फिक्स पॉइंट है, टड़ोंग, फिर वापस, फिर टड़ोंग, फिर वापस, तो आपके एक फिक्स पॉइंट पे इधर उधर ये भटक रहा है, ठीक है। So that is called oscillatory motion. In which type of motion does an object follow a path that its speed remains constant but its direction changes continuously? Uniform, circular, accelerated or projectile? Up. Speed remains constant but its direction changes continuously. देखो यहां पे एक सर्कल है, इस सर्कल में कोई बॉडी मूव कर रहा है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर आप देखोगे सब में आपका स्पीड सेम है बट डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को अपन क्या बोलेंगे? दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। मेकिंग सेंस, ठीक है। ओके ओके ओके। What type of motion is exhibited by a swinging pendulum when it is displaced from its equilibrium position and released? तो ये आपका पेंडुलम था और ये छोड़ दिया हमने, ये टड़ंग 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 कर रहा भाई साहब। आप लोग जा सकते हैं, कल मुझे ये चाहिए वर्कशीट और पिछला वाला वर्कशीट भी। पिछले वाले वर्कशीट को किसने किसने सबमिट किया है मैम के पास? इनको छोड़कर बाकी सब लोग सबमिट करेंगे कल। नहीं करेंगे तो डिफॉल्टर में नाम डाल के आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, समझे क्या ना? समझ गया, चलो ठीक है, जाइए। Okay, what type of motion is exhibited by a swinging pendulum? So the see oscillatory motion. This will be basically a oscillatory motion. Okay. Explain in detail the different types of motion encountered in everyday life. Provide examples of each type and discuss the key characteristics that distinguish them. तो आपके different types of motion है, rectilinear motion है, circular motion है. Then we have oscillatory motion. These are different types of motion. Rectilinear motion when a body travels in a straight line. When a body travels in a circular path, we call it circular motion. And when a body is basically executing motion around a fixed position, okay, it is called to and fro motion or oscillatory motion. Okay, okay. Provide examples. So the moving of a car in a straight line is basically an example of rectilinear motion. Okay, circular motion. So a stone basically tied to a string when it is rotated, that is an example of circular motion. A spring, ठीक है, हमने उसको खींच के छोड़ दिया तो it oscillates about a mean position, that is called a to and fro motion or oscillatory motion, ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हम कब बोल रहे हैं? ओके, इस चीज को समझो। जब हम किसी चीज का टाइप बोलते हैं ना, जैसे मैं अगर बोलूं तुमने भाई साहब किस टाइप का अभी ड्रेस पहना हुआ है, तुम बोलोगे मैं टी शर्ट पहना हुआ हूँ, है ना, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा कि तुम किस टाइप का कलर पहने हुए, तो तुम बोलोगे ये इस टाइप का कलर है। तो टाइप अलग अलग होता है। देयर कैन बी टाइप इन टर्म्स ऑफ कलर, देयर कैन बी टाइप इन टर्म्स ऑफ द मटेरियल ऑफ क्लॉथ दैट यू आर वेयरिंग, देयर कैन बी टाइप इन टर्म्स ऑफ द स्टाइल दैट यू आर वेयरिंग। ये टी शर्ट का स्टाइल है भाई साहब, शर्ट का स्टाइल अलग होता है, ठीक है। बटन टी शर्ट होते हैं, नो बटन का टी शर्ट होता है, अलग अलग टाइप्स। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आपने सिखाया है टाइप और यहाँ पे आप सर्कुलर मोशन, तो ये दोनों अलग कॉन्टेक्स्ट की चीजें हैं, ठीक है। मुद्दा यहाँ पे आपका ड्रेस है जो आप पहने हुए हैं, अभी वो किस कलर का है वो एक टाइप हो सकता है, वो किस मटेरियल का है वो एक टाइप हो सकता है, ठीक है। आप मतलब वो बटन है या नो बटन का है वो एक टाइप हो सकता है, तो अलग अलग चीजें हो सकती है ना। वो तो ये अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज को ड्रेस ही है लेकिन अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स में आ रहा है। इसी तरह से मोशन भी है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये हो गया, सर्कुलर ऑसिलेटरी और रेक्टिलिनियर ये हो गया। ये टाइप के साथ आप नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कलर टाइप के साथ आप मटेरियल को कंपेयर नहीं कर सकते। मटेरियल या तो कॉटन का होगा या तो नायलन का होगा या कोई और सिंथेटिक चीज का होगा, सिल्क का होगा, ये मटेरियल्स हैं। कलर आपका रेड ऑरेंज ब्लू कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, बटन होगा या नहीं होगा वो अलग हो सकता है। तो आपका मोशन का टाइप समझो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू रेक्टिलिनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ठीक है। हालांकि मोशन से दोनों भी रिलेटेड है, हालांकि दोनों भी मोशन के एक टाइप्स हैं, बट अलग अलग कैटेगरी है। समझ में आ रही है? सो यू कैन नॉट कंपेयर। आपने बोला था कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, अभी आप बोल रहे हो ये दोनों अलग चीजें हैं। अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। दैट सॉल्व्स योर क्वेश्चन। आप दोनों भी लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं ऑन द टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग डिस्टेंसेस विथ टाइम, इट कैन बी इधर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर स्पीड इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नॉन यूनिफॉर्म। इफ स्पीड इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म। ऐसा बोलेंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द मोशन इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन और ऑन अ कर्व पाथ, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इनटू थ्री, ठीक है। ऐसे लिख देंगे आप। क्लियर है? Additionally, describe situations where understanding these various types of motions is essential and how they play a role in functioning of objects and systems around us. तो आपके भाई साहब कैसे रोल प्ले करते हैं, क्या 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 आपका सिचुएशन है। आपने सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल देना है, आपको भाई साहब एक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल देना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ओके ओके ओके। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है बच्चा बाड़ी? वेयर यूनिफॉर्म मोशन, बोलो फटाफट फटाफट, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आपका, ठीक है, अगर आपका वेलोसिटी नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अपन बोलेंगे इसको यूनिफॉर्म मोशन। और एक्सीलरेटेड मोशन, velocity changes with time. If there is a change in velocity with respect to time, then it is called accelerated motion, ठीक है। velocity changes with respect to time, velocity changes with respect to time. Are we clear on this one people? हम समझ में आता? ठीक है ठीक है ठीक है। define each type of motion, discuss the key characteristics and provide examples to illustrate the differences, ठीक है। just 1 minute. समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके, एडिशनल एक्सप्लेन हाउ अंडरस्टैंडिंग दीस मोशंस इज एसेंशियल। ये सब छोड़ो भाई साहब, ठीक है, बट दिस इज अंडरस्टूड राइट। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ा था, क्या होता है? स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होता है? जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अभी अभी इसको दबाकर हम तेरा पेन मेजर करेंगे, दर्द होगा नहीं? जिसको हम लोग मेजर कर सके, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वही जो इसको हम मेजर कर सकते हैं। स्केलर मतलब क्या होगा? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर मतलब क्या होगा? जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसका डायरेक्शन भी होगा, जिसको हम लोग मेजर कर सके। फिजिकल क्वांटिटी मतलब ही होता है जिसको आप मेजर कर सको, ठीक है। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज रेफर टू एज फिजिकल क्वांटिटी। आपके दिमाग में कोई थॉट चल रहा है किसी को पटक के मारने का, ठीक है, इसको अपन मेजर नहीं कर सकते,
तो कल तो जाकर धोऊंगा, और आप उसको मार भी रहे हैं दिमाग में, है ना, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो देयर इज एन अनमेजरेबल थिंग। लेकिन आप इस लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, आप इस ब्रेथ को मेजर कर सकते हैं, किसी मिल्क कैन में कितना पानी है वो आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। सो दीज कैन बी मेजर्ड बच्चा पार्टी, इन सब को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे चश्मे का पावर क्या है, वो भी आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have got only magnitude. Vector quantities will have magnitude plus direction. Are we clear? Clear on this one? बहुत बढ़िया। ये सब आपके स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के डिफरेंसेस हो गए। Has only magnitude but no direction. Vector quantity has got both magnitude and direction. Any change in scalar quantity is the reflection of change in magnitude. अगर मैं बोल रहा हूं जैसे डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, तो अगर उसमें चेंज हो रहा है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, ठीक है। एनी चेंज इन द वेक्टर क्वांटिटी कैन बी ईदर ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड और ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन और बोथ, दोनों भी चेंज होगा, डायरेक्शन और चेंजेस इन मैग्नीट्यूड और बोथ। समझ में आ रहा है? स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी रिजॉल्व एज इट हैज एग्जैक्टली सेम वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। अभी रिजॉल्व जो है वो आप अभी नहीं समझ पाएंगे। एक कोई वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ये आप थोड़े से हायर लेवल पे समझेंगे। सो लेट इट बी, ठीक है। एवरी स्केलर, इसको आप ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। स्केलर क्वांटिटी इज वन डायमेंशनल, एक ही डायमेंशन में होगा, दो डायमेंशन इसका नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी वन, टू और थ्री डायमेंशन, ये तीनों क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन है। जब जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई साहब स्केलर क्वांटिटी, एक बॉडी ऐसे जा रही है स्ट्रेट लाइन में, तो आप बोलेंगे अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई प्लॉट करूं तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव करता है। अगर मैं बोलूं कि बॉडी ऐसे जा रही है तो वो उसका एक एक्स कंपोनेंट भी है, उसका वाई कंपोनेंट भी है, और उसका जेड कंपोनेंट, मतलब 3D मोशन होगा उसका, ठीक है। सो आपका वेक्टर क्वांटिटी सब डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन से लिंक्ड है। स्केलर का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उसको हम वन डायमेंशन ही बोलेंगे। उसका क्या डायमेंशन, ठीक है, जिसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है उसका क्या डायमेंशन, लेकिन जिसका डायरेक्शन से लेना देना है वो वन डायमेंशन भी हो सकता है, टू डायमेंशन भी हो सकता है, और थ्री डायमेंशन भी हो सकता है, ठीक है। ओके, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, एनर्जी हो गया, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स एक्सेट्रा। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? समझ में आता? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ अ इंसेक्ट आर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मास। विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग ऑफ एन इंसेक्ट आर फोर्स, वेलोसिटी, मास, डिस्प्लेसमेंट। बोलो। हाँ, अगर पक्षी या इंसेक्ट अपने पंख ना फैलाए तो क्या वो उड़ेगा? बैठा रहेगा ना। उसको उड़ने के लिए अपने पंख को फ्लैप करना पड़ेगा, ठीक है। सो जब वो उड़ रहा है तो क्या हो रहा है? तुम उड़ पा रहे हो क्या? तुम्हारे पास तो पंख नहीं है, तो तुम अगर उड़ोगे तो क्या होगा? तुम्हारा मास होने के बावजूद भी तुम भाई साहब ऊपर उड़ रहे हो, है ना। सो यू नीड अ सपोर्ट, ठीक है, टू यू नीड अ फोर्स टू सपोर्ट दिस मास। और यहाँ पे ये जो पंख फैला रहे हैं, दे आर बेसिकली फोर्सिंग देयर मास टू बी सस्पेंडेड इन एयर, तो दे नीड अ फोर्स, ठीक है। उनको एक फोर्स चाहिए, तो ये जो पंख है वो क्या क्रिएट कर रहा है? वो एक फोर्स क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से ऊपर जा रहा है। ये पंख से उसने ऐसे हवा को ऐसे नीचे ढकेला, तो हवा नीचे ढकेला तो हवा का एक रिएक्शन हुआ, हवा ने उसको ऊपर ढकेला। उसने हवा को नीचे ढकेला तो हवा ने उसको ऊपर ढकेला, ठीक है। दैट्स हाउ इट इज मूविंग। सो ये क्या है? दे आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मास एंड वेट? देखो मास क्या होता है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ये 10 केजी का है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 केजी का वुड है इसमें, ये भाई साहब 10 केजी का वुड है। लेकिन जब मैं इसको ऊपर से ऐसे फेंकूंगा तब ये मास नहीं होगा, तब इसका वेट होगा। कितना वेट है आपका? मालूम ही नहीं, बहुत बढ़िया। किसी को अपना वेट मालूम है यहाँ पे? 60। ओके, सो ये भाई साहब बोलते हैं आदित्य सेइंग दैट हिज वेट इज 60। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? इज ही राइट?
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसने स्केल ठीक से नहीं देखा है, मैं बोल रहा हूं आदित्य इज सेइंग दैट हिज वेट इज 60 केजी, इज ही राइट? ये हमारा मिसकंसेप्शन है। नो, दिस इज नॉट हिज वेट, दिस इज हिज मास, ये उसका मास है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरा वेट है 79 केजी, ठीक है, अगर मेरा वेट 79 केजी, इसका मतलब क्या है, मेरे बॉडी में खून, मसल और आपका फ्लैश, ठीक है, ये सारी हड्डियां, इन सब चीजों का जो मास है वो है 79 केजी। दैट इज व्हाट आई मीन। ठीक है, ये मेरा मास है। अगर मैं अपने बॉडी को मून पे भी लेकर जाऊं तो भी मेरा मास 79 रहेगा, स्पेस के किसी भी कोने पे लेकर जाऊं तो भी मेरा मास 79 ही रहेगा। दैट इज बेसिकली द मास ऑफ द कंटेंट, मास ऑफ द मैटर बाय विच माय बॉडी इज मेड। बट दिस इज नॉट माय वेट। वेट क्या होगा? वेट होता है, वेट इज बेसिकली द फोर्स with which with which the earth attracts a body। अर्थ एक बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट्स अ बॉडी, यहां पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाता है। तो वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जनरली आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने कुछ सवाल किए हैं तो आपको वो दिख रहा है। तो अगर आदित्य बोल रहा है कि उसका मास है 60 केजी, तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 60 केजी इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो ये हो जाएगा 600 न्यूटन। तो आदित्य's वेट इज 600 न्यूटन। दिस इज इज मास, ये इसका मास है। समझ में आ रहा है? तो हम जो बोलते हैं ना वो गलत है कि मेरा वेट 70 केजी है। नहीं, तुम्हारा वेट 70 केजी नहीं है, तुम्हारा मास 70 केजी है। फिजिक्स में इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है। केमिस्ट्री में मास और वेट को हम उतना ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते, ऑलमोस्ट सेम ही कंसिडर करते हैं, और रोजमर्रा के जीवन में भी हम जनरली सेम कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन फिजिक्स इज वेरी पर्टिकुलर। व्हाट इज दिस, योर मास और योर वेट। आप देखो भाई साहब, कहां 60 केजी और कहां 600 न्यूटन। 600 Newton is the force. So if Aditya actually jumps from here, so the earth will pull him with a force of 600 Newton. ये है weight. What is the force with which he will be pulled towards earth? तो अगर ये यहां से कूद रहा होगा तो अर्थ कितने फोर्स से उसको खींच रहा है? 600 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है। दैट इज हिज वेट। ठीक है, मास और वेट में समझ में आ रहा है? मास इज द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, कितना मैटर है उसमें। ठीक है, एंड वेट इज द फोर्स विथ विच द बॉडी इज पुल्ड टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है, तो आपका मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी। फिर हाँ, मून और अर्थ में वो हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब। वो वेट इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये वाली वैल्यू चेंज हो जाती है, मास नहीं चेंज हो रहा है आपका। ठीक है, लेकिन ये जी जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज जनरली टेकन एज 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसके वजह से आपका वेट आता है। यही जी की वैल्यू मून पे अलग हो जाएगी, दूसरे किसी प्लैनेट में शायद जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जी की वैल्यू की वजह से आपका वेट चेंज हो जाएगा, लेकिन मास चेंज नहीं होगा। मास इज गोइंग टू रिमेन द सेम। वॉट एवर मास यू हैव ऑन अर्थ, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम एवरीवेयर इन स्पेस। The weight will change as per the acceleration due to gravity that is applicable in all other places. ठीक है? Okay. So which of the following is true about mass and weight? Mass is a vector quantity and weight is a scalar quantity. Exactly opposite है। Mass scalar है, ठीक है, और वेट आपका वेक्टर है। इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। बोथ, तो ये तो रॉन्ग है। बोथ मास एंड वेट आर वेक्टर क्वांटिटीज, ये भी रॉन्ग है। बोथ मास एंड वेट आर वेक्टर क्वांटिटीज, ये फिर से क्यों कॉपी कर दिया? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास का सिर्फ और सिर्फ भाई साहब मैग्नीट्यूड है, मास का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वेट का आपका भाई साहब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों भी है। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। Which of the following is a vector quantity? Time, gravitational force, distance और surface area। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसको टाइम, टाइम का कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं। तुम यहां बैठे हो तो भी वही टाइम है, घर पे बैठे हो तो भी वही टाइम है, वैसा ही है ना। इट हैजंट गॉट एनी डायरेक्शन। तो ये तो आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स आपका डायरेक्शनल क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दिस विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस आपने देखा कि भाई साहब स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर होता है। सरफेस एरिया भाई साहब ये भी आपका स्केलर है। सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे समझ लो ये लेंथ है,
ये मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। बट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज गॉट बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज प्रोवाइड, चलिए उसको बाद में देखेंगे हम। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक हो गया आपका डिस्टेंस और दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है भाई साहब? एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, shortest distance between initial and final positions of the body, initial and final positions of the body, ठीक है। अभी समझो ये A है और ये B है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, चाहे रास्ता हो या ना हो, और अगर आप ऐसे घूम कर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ठीक है। सो डिस्टेंस इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, क्लियर है? ओके। So what is distance? It is the actual length of the path traveled by the object. Displacement is the shortest distance traveled by an object between the initial and final points. Okay? It is a scalar quantity and SI unit of distance is meter. It is a vector quantity and the SI unit of displacement is meter. Distance covered by an object is always positive. ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा है, इफ अ बॉडी इज मूविंग, द डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे? अगर समझ लो आपने यहां से स्टार्ट किया, आप इधर गए 5 मीटर और फिर आप इधर गए 10 मीटर, तो आपके शुरुआती, मतलब ये अगर 5 मीटर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा कितना? 5 मीटर नेगेटिव, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 मीटर नेगेटिव, ठीक है। सो इट इज नेगेटिव। जीरो कैसे हो जाएगा? आपने यहां से स्टार्ट किया और यहां पे एंड किया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया? जीरो। सो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। हमने ये पढ़ा हुआ है भाई साहब, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे, और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो जनरली आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विल बी मोर देन द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इट कैन बी इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। The numerical ratio of displacement to distance of a moving object, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आपने देखा डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो मैं पूछता हूं डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, सॉरी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अगर कर दोगे, इसको इधर लेकर आओगे, इट विल बी लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं? भाई इसको इधर ले रहे हो ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये समझ में आ गया। तो अगर मैं इसको इधर ले लू, डिवाइड कर दूं, तो यहां पे बचा क्या? 1, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। तो द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज लेस देन और इक्वल टू 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1, दिस इज इक्वल टू और लेस देन 1। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको, ट्राई कीजिए, क्विक क्विक जल्दी से।
A particle is moving in a circular path of radius r. The displacement after half a circle would be. एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो ये एक पार्टिकल है, यहां से चला और ये पहुंचा यहां पर, ठीक है. अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r. ये वाला रेडियस कितना है इसका r. ये यहां पे पहुंचा. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर हाफ अ सर्कल. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला. तो कितना हो गया? r प्लस r, दैट इज 2r, है कि नहीं भाई? व्हाट इज द डिस्टेंस? ये आपका फाइनल पोजीशन है, ये आपका इनिशियल पोजीशन है. सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस इज द डिस्प्लेसमेंट. यहां से यहां r, यहां से यहां r, तो ये हो गया 2r. सो दिस विल बी हाउ मच? 2r. दिस विल बी 2r. क्लियर है? क्लियर क्लियर. अरे भाई साहब 2 पाई r डिस्टेंस है. तुम अगर यहां से चले तो यहां तक पहुंचे तो क्या डिस्टेंस कवर किया तुमने? 2 पाई r. दिस इज द लेंथ ऑफ द पार्ट. अगर तुम यहां से यहां तक की बात करोगे तो वो हो जाएगा हाफ इंटू 2 पाई r. ये हो जाएगा पाई r विच इज डिस्टेंस. यहाँ पे बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की. अगर डिस्टेंस पूछा होता तो पाई r होता था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा है. डिस्टेंस इज व्हाट? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, and displacement is what? The distance between initial and final positions of the body. So here distance between the initial and final positions of the body is 2r, and that's what you're supposed to write. Okay? Okay. An athlete completes one round of a circular diameter of 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? ये सवाल हम कर चुके हैं, फिर भी आप ट्राई कीजिए जरा फटाफट. ये सवाल कर चुके हैं भाई साहब. देखो यहां पे आपका स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, देखो 1 राउंड, ठीक है. डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है भाई साहब? एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर. तो ये आपका डायमीटर कितना है भाई साहब? आपका 200 मीटर्स का. दिस इज 200 मीटर्स, ठीक है. 1 राउंड यहां से चला यहां पे आया कितने में? 40, सॉरी यहां तक, यहां से चल के पूरा यहां तक आया इन हाउ मेनी? 40 सेकेंड्स, ठीक है. तो डिस्टेंस यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? 2 पाई r, ठीक है. और टाइम कितना लगा यहाँ पे? 40 seconds. So this will be 2 into 22 by 7 into r, that is 200 meters upon ये हो गया आपका 40 seconds. ये कैंसिल 4 5 जा, ठीक है. 22 5 जा 110, 110 ये हो गया आपका 220, 110 220 by 7, 22 5 जा 110 into 2, ठीक है. 220 by 7. So this is basically what? 220 by 7 meter per second. Are we clear on this one people? ये हो गया डिस्टेंस का. क्या अरे भाई स्पीड निकाल रहे हैं ना हम यहाँ पे. ये तुम्हारा हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? स्पीड, ठीक है. व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड? तो हम अगर डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखो, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड मतलब हो गया 2 पाई r, ठीक है, इन 40 सेकेंड्स. व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 40 सेकेंड्स? तो पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 पाई r की वैल्यू कितनी हो गई? 40, ठीक है. सो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू कितना है भाई साहब आपका? रेडियस 100. दिस इज कवर्ड इन 40 सेकेंड्स, है ना. तो आपका यहाँ पे कितना है? 2 मिनट्स 40 सेकेंड्स. 2 मिनट्स 40 सेकेंड्स मतलब कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2 इंटू 60 प्लस 40. तो ये हो गया आपका 120 प्लस 40. सो दैट इज गोइंग टू बी 160 सेकेंड्स, ठीक है. तो 40 सेकेंड्स में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया भाई साहब? 2 इंटू 22 दैट इज 44, और ये हो गया 0 अपॉन 7 मीटर. तो आपने 40 सेकेंड्स में इतना डिस्टेंस कवर किया. तो 1 सेकेंड में कितना कवर कर रहे हैं? 4400 बाई, या तो सीधा आप यहाँ पे स्पीड निकाल लो ना, वही तो मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, ठीक है. तो ये हो गया आपका डिस्टेंस कवर्ड, ये हो गया आपका डिस्टेंस कवर्ड, और ये हो गया आपका टाइम. जबकि हम सवाल दूसरी बार कर रहे हैं. यू शुड हैव बीन एबल टू डू दिस. स्पीड आपका कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 100 बाई 40. ये कैंसिल
2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 11 जा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 110/7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका स्पीड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड? तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दैट इज 110/7 इनटू टाइम। टाइम कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे आपका 140 सेकेंड्स। ठीक है, 140 सॉरी 160 सेकेंड्स ना, 260 जा 20 सेकेंड्स है, आई एम सॉरी, ये 20 सेकेंड्स है, 20 सेकेंड्स है तो ये होगा 140, तो ये हो गया आपका 140। 7 20 जा, इसको कर लो भाई साहब, 2 11 जा 22 और ये 0 0, तो इतना आपने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, क्लियर है? अगर इतना आपका डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस समझ में आ गया? डिस्टेंस इज हाउ मच? 2200 मीटर्स बच्चा बाड़ी। नाउ व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? भला भला जल्दी से बोलो। तो हमको देखना पड़ेगा कि भाई साहब कितने राउंड हो रहे हैं। एक राउंड का टाइम कितना है? 40 सेकेंड्स। ठीक है, सो इन सो 40 सेकेंड्स इज बेसिकली वन राउंड। ठीक है, तो आपका 140 सेकेंड्स में कितना राउंड होगा भाई साहब? ठीक है, तो 3 है ना, तो ये हो गया 140/40 राउंड्स। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 7 जा, तो ये हो गया 2 3 जा 6 1 7, 3.5 राउंड्स। अभी हमको मालूम है वन राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? वन राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो 3 राउंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। बचा आपका हाफ राउंड। हाफ राउंड मतलब समझिए ये आपका है, यहां से स्टार्ट हुआ और ये हाफ राउंड, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजिशंस, तो ये आपका कितना हो जाएगा बोलो? आपको आर दिया हुआ है यहाँ पे, आर की वैल्यू कितनी है? 100, 200 डायमीटर है, ये डायमीटर लिख दो भाई साहब। सो हियर द डिस्प्लेसमेंट विल बी 200 मीटर्स। ठीक है, आर बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बच्चा बाड़ी? ओके ओके ओके। आपका शीट अभी तक मुझे मिला नहीं, किसी का भी शीट नहीं मिला, क्यों? हाँ, कल जब आपका टेस्ट होगा तब क्या करेंगे? अरे यार ये कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाकर दे देते हैं, पता नहीं कहां से क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, ये वो दुनिया भर का। चलिए आज नया शीट, अरे आई वांट यू टू डू दिस। आपने किया है? सिर्फ आरव नहीं किया है इसको? हाँ, और किसने, किसने किसने नहीं किया? पूरा नहीं हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड। और ये दूसरा जो मिल गया, पीछे बैठो, मैं चेक करूंगा अभी फटाफट।
किसका किसका हुआ है? तुम्हारा, तुम दोनों का ही हुआ है, बाकी सब डिफॉल्टर, किसी का नहीं हुआ है। क्या चल रहा था तुम लोग का? नेशनलिज्म। मॉड्यूल 19, मॉड्यूल 19 ये ना। ओके, दैट मेक्स माय जॉब इजी। चलिए भाई साहब,